Assalamualaikum dear students. This is your third lecture for IC second year computer science subject. Starting in the name of God Almighty, who is the origin and essence of eternal blessings. I am your teacher Shahid Barkat. Today's outlines are as a revision low level languages and high level languages, and in the end there is a question for the genius. Well students, you already know that there are two levels of programming languages. Number one, low level languages, and number two, high level languages. Low level languages are used to create system softwares, and high level languages are used to create application softwares. A revision of low level languages. Computer is a machine, therefore computer understands only and only machine language. Assembly language uses mnemonic codes. Low level languages are used to create system softwares, for example operating systems and language translators. One-to-one correspondence. Machine dependent. Require thorough knowledge of hardware. Easy for computer but difficult for the programmer. Very fast execution and lengthy source code. Well students, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस जो है, अगर आपने कंप्यूटर से 20 टास्क परफॉर्म करवाने हैं तो आपको लो लेवल लैंग्वेजेस में 20 ही स्टेटमेंट्स भी लिखनी होंगी. अगर आपने 50 टास्क परफॉर्म करवाने हैं तो आपको 50 ही इंस्ट्रक्शंस भी लिखनी होंगी. ये दैट इज नोन एज ए वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस. Now your main topic is high level languages. If a programming language is neither a machine language nor an assembly language, then undoubtedly it is a high level language. High level languages are used to create application softwares. Instructions are written mostly in natural language, for example English. So it is easy to write programs using high level languages. Few examples of high level languages are C, C++, C Sharp, Objective-C, Java, Basic, VB.NET, Python, Ruby, COBOL, PHP, SQL, Perl, Erlang, Ada, etc. Or very simply, you can say all programming languages are high level languages except machine language and assembly language. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि ऑलमोस्ट हमारे पास 700 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से 245 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और उनमें से सी लैंग्वेज टॉप 10 लैंग्वेजेस में आती है. तो आपको सिर्फ ये पहचानना है कि क्या कोई लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज नहीं है और असेंबली लैंग्वेज नहीं है तो वो फिर हाई लेवल लैंग्वेज होती है. ओके, देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस. तो लेफ़्ट साइड पर मैंने हाई लेवल लैंग्वेजेस लिखी हैं और राइट साइड पर मैंने लो लेवल लैंग्वेजेस को हाईलाइट किया है. तो हाई लेवल लैंग्वेजेस ईजी फॉर द प्रोग्रामर टू राइट सोर्स कोड, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस डिफ़िकल्ट फॉर द प्रोग्रामर टू राइट सोर्स कोड. हाई लेवल लैंग्वेजेस एक्सट्रीमली पावरफुल टू क्रिएट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. Low level languages are extremely powerful to create system softwares. Thorough knowledge of hardware is not required. Thorough knowledge of hardware is required. User oriented, machine oriented. User oriented means ये है कि ये यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है, यानी कि यूज़र के लिए, प्रोग्रामर के लिए आसान हो, जबकि मशीन ओरिएंटेड मीनिंग्स ये होंगे कि ये मशीन के लिए आसान होने चाहिए, यूज़र के लिए या प्रोग्रामर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं. वन स्टेटमेंट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क, एंड लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या है, वन स्टेटमेंट कैन परफॉर्म वन टास्क. कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 20 टास्क कंप्यूटर से परफॉर्म करवाने हैं और आप लो लेवल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो आपको 20 टास्क परफॉर्म करवाने के लिए 20 ही स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी, जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस में
20 टास्क परफॉर्म करने के लिए हो सकता है कि आपको सिर्फ 5 जो है स्टेटमेंट्स लिखें और 20 के 20 टास्क परफॉर्म हो जाएं। तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी होती हैं। अब एक और बहुत बड़ा एडवांटेज इसका ये है, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नॉट मशीन डिपेंडेंट, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट। इसका मतलब ये है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है उसका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर पर आप रन कर सकते हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस में बनाया हुआ प्रोग्राम सिर्फ उस मशीन पर चलेगा, उस कंप्यूटर पर चलेगा जिसके लिए वो बनाया गया है। ओके, in the end there is a question for the genius: which languages are used for missile and rockets guidance? यानी आपने मिसाइल और रॉकेट्स गाइडेंस को सीखा है, पढ़ा है, फिजिक्स में भी, आप नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, तो आपको ये देखना है कि अगर जब हम उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इनको गाइड करने के लिए, तो हम कौन सी लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आई डू होप कि आप बहुत जल्द मुझे आंसर देंगे। गुड लक एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।